नमस्कार। एक बार फिर लखनऊ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं कबीर को अपनी एक भावभीनी कुसुमांजलि देते हुए। We all know that the new education policy or the national education policy of India very importantly envisions that we should be instilling the values of India into our students, that is Bharat, a sustainable, equitable society that we want to build. The vision is to instill amongst them a spirit of fraternity, of love, of justice, which is also the value which are there in the Indian Constitution. Indian heritage, as we know, is a rich, long heritage. On the one hand, we have had the Ajivikas, the Charvaks, who believe only in the physical self. There are the Buddhists who believe that there is no permanent self. And there is this grand, all-embracive, abundant philosophy of the Advaita Vedanta, which talks of the grand self, which embraces everything. Sarvam khalu idam brahmam. What best could represent all this thought in one? It is the writings of Kabir. Though not literate in the formal sense, he imbibed all the knowledge of Indian philosophical systems living in Varanasi. And he very rightly says, तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी. Kabir points out to the rich Indian heritage. He uses the names of Ram, he uses the name of Murari, he uses the name of Purushottam, but he takes them out of their ritualistic context and puts them in the form of an abstract, universal self. Kabir criticizes all ritualism ruthlessly, and yet he speaks about politeness. मीठी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए. It's interesting that Kabir sometimes seems to be critical of the feminine guile, Maya Mahataginiya Jani. But on the other hand, he also feminizes his own self, Hari mere piu me Ram ki bahuriya. Kabir represents protest, reform, and a humane side of the Indian culture. We all know that Indian society, like all other societies, moved from a suggestive, grand scale of development in the physical arts, in political science, in metaphysics, in epistemology. But then there had been periods of stagnation, ritualization, and ossification of structures, which require a strong sense of protest and restructuring. Kabir represents that spirit of curiosity, creativity, reform, and a dogged sense of pursuing truth. All educators need to represent, learn Kabir and from Kabir Prani. The most beautiful part of Kabir's life, as we know, is born a Muslim, raised by a Hindu. His writing finds the maximum space in Sikh Gurbani. This is the true spirit of India, and we hope that through our small representations of what our students have to say, we'll again remember this beautiful spirit of globality and humaneness today. Thank you very much. Please watch this.
कैसे ईश्वर और धर्म दोनों को ही विस्थापित करने की कोशिश की। वो कितने सफल हुए या सफल नहीं हो पाए ये बहस का मुद्दा ज़रूर हो सकता है, परंतु उन्होंने हिंसा की जगह प्रेम को स्थापित करने की अवश्य कोशिश की। आज के समय में जब हिंसा और द्वेष बहुत बढ़ गए हैं तो कबीर की और भी ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। यदि कोई मुझसे पूछे कि कबीर का सत्य क्या है तो मैं यही कहूँगी कि प्रेम। कबीर के प्रेम में मिलन है, विरह है, सहजता है, अपार संभावनाएं हैं, और फिर जिसे प्रेम करना आता हो वह असहज और झूठा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए कबीर जो हैं वो सहज को चीनते हैं। सहजे सहजे सब कहे, सहज न चीने को। कबीर एक बड़े साधक थे, घुमक्कड़ थे, मस्त मौला थे। उनके दर्शन शास्त्र को समझने के लिए उस परंपरा तक जाना होगा जहाँ से कबीर को जीवन रस प्राप्त हुआ था। तभी हम कबीर के सार को सही अर्थों में समझ पाएंगे। आज कबीर जयंती पर कबीर को शत शत नमन। कबीर, जिसके नाम का अर्थ ही होता है महान, निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक, मानवीय प्रेम के साधक और वाणी के बादशाह, कबीर का साहित्य आज भी बहुत प्रासंगिक है, आश्चर्यजनक है, लेकिन उतना ही सत्य है कि आज भी कबीर के साहित्य में वर्तमान समय की समस्त समस्याएं उसी प्रकार से नजर आती हैं।
सबसे बड़ी बात, कबीर मानव प्रेम को सर्वोपरि रखते हैं। मानवीय समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, बाह्याडंबर, रूढ़ियाँ, छुआछूत, अस्पृश्यता, धार्मिक भेदभाव को वो सिरे से नकार देते हैं। आज हमारे समाज में धर्म और जाति के नाम पर जितनी भी समस्याएं मौजूद हैं, उन सबका समाधान कबीर के साहित्य में मिलता है। कितनी सहजता से वो प्रश्न करते नजर आते हैं। साधो देखऊं जग बौराना, हिंदू मुए राम कही, मुसलमान रही माना। हमें नहीं लगता कि आज का साहित्य और आज का समाज भी इतनी सहजता से उन सवालों को खड़ा करता है। जब अस्पृश्यता की बात हो, जातिगत समस्याओं की बात हो, कबीर का साहित्य वैसे ही प्रश्न करता नजर आता है। एक बूंद एके मलमूतर, एक बूंद एके मलमूतर, एक चाम एक गूदा, एक जोत से सब उपजाना को बामन को सूदा। ऐसे खरे सवाल जिसके समक्ष बड़े बड़े दार्शनिक और चिंतक भी मौन रह जाते हैं। कबीर का साहित्य ऐसी शाश्वत समस्याओं को, जो मानव को बांटता है, मानव को तोड़ता है, बड़ी ही बारीकी से हमारे सामने रखता है। और इन समस्त समस्याओं का समाधान कबीर जिस मानवीय प्रेम में देखते हैं, जिसे निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में अपनाते हैं, वो ईश्वरोन्मुखी प्रेम भी सहजता से मानव के अंदर ही है। उनका ब्रह्म कहीं और नहीं बल्कि सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। तभी तो वो कहते हैं, आज के दौर में भी वो उसी तरह लागू होता है। वे कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। गुरु गोविंद दो खड़े गाकुला गोपाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताया। तो क्या हुआ जैसे पंक्ति को छाया फल लागे कबीरा, फल लागे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजे अपना मुझसे बुरा न कोई, कबीरा मुझसे बुरा न कोई। मन के जीते जी मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मत निराश होए, तू उठ ओ मेरे मन के मीर, उठ रे मन के मीर।
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे का होए कबीरा, दुख काहे का होए। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। नमस्कार, मेरा नाम शिवम पांडे है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय समाज में धार्मिक स्वतंत्रता, समानता, समन्वय, सहयोग, धर्मनिरपेक्षता या फिर इन सबको एक पंक्ति में जोड़कर मैं कहूं तो होता है वसुधैव कुटुंबकम। जी हाँ, इस पर हम लोग कई बार चर्चा करते हैं या कई बार वाद विवाद का प्रश्न भी रहता है, लेकिन हम देखते हैं कि आज हमें इसमें इतनी सफलता मिल गई है कि आज यह भारतीय संविधान में अंगीकृत हो चुका है या इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन कभी जब इस पर चर्चा करते हैं तो हम यह सोचते हैं कि इसके प्रणेता कौन है, इसके प्रेरणा स्रोत कौन है, इसकी शुरुआत कब हुई। तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक नाम आता है, मध्य युग के महान कवि कबीरदास, जिन्होंने अपनी पंचमेल शैली से, काव्य कला से इस पर एक स्पष्ट प्रहार किया, जिन्होंने रूढ़िवादियों पर एक नई चेतना से प्रहार किया, जिन्होंने हमें एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। आज उन्हीं के जीवन चरित्र पर स्वरचित अपनी कविताएं उन्हीं के चरणों में मैं निवेदित करता हूं, जो इस प्रकार है कि धर्मों के संदर्भों में जो निज तटस्थ है, धर्मों के संदर्भों में जो निज तटस्थ है, वह कबीर जो मानवता का पथ प्रशस्त है, वह कबीर जो मानवता का पथ प्रशस्त है, जो मध्यकाल की धारा का निर्गुण प्रतीक है, जो मध्यकाल की धारा का निर्गुण प्रतीक है, जो वर्तमान की मौलिकता का ही अतीत है, जो वर्तमान की मौलिकता का ही अतीत है, जो संप्रदाय के संशय पर अत्यंत मुखर है, जो संप्रदाय के संशय पर अत्यंत मुखर है, जो रूढ़िवादी के अंधकार पर अर्क प्रखर है, जो रूढ़िवादी के अंधकार पर अर्क प्रखर है, वह मानव जिसका एकमात्र परिपेक्ष रहा, वह मानव जिसका एकमात्र परिपेक्ष रहा, जो सर्वधर्म संभाव हेतु निरपेक्ष रहा, जो सर्वधर्म संभाव हेतु निरपेक्ष रहा, जो शांति समन्वय का अग्रज निर्माता है, जो शांति समन्वय का अग्रज निर्माता है, जो पंचमेल की काव्य कला बतलाता है, जो सामाजिक उन्मादों में नित्य संवादों का कारक है, जो सामाजिक उन्मादों में नित्य संवादों का कारक है, जो विश्व जगत के अवलोकन में प्रथम समाज सुधारक है, जो विश्व जगत के अवलोकन में प्रथम समाज सुधारक है, जो मुख से निकला हर एक आखर दुर्गम शास्त्र हुआ, जिसके मुख से निकला हर एक आखर दुर्गम शास्त्र हुआ। सत्य विवेचन है कि कबीर अजेय और एकमात्र हुआ, कबीर जैसा कोई नहीं। मेरी यह छोटी सी प्रस्तुति आपके चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद।